Hello and welcome. This is the sixth lecture of current electricity and we are going to start the combination of resistors. ठीक है, combination of resistors. सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस. सो दिस इज अ सर्किट, closed electric circuit representing the series combination of resistors. Suppose that this is cell of EMF E, this is resistor R1, this is R2, this is R3 and this is Rn. Okay, now let us say I current is flowing through the circuit. ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सीरीज कॉम्बिनेशन कि ईच resistors are connected end to end. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, current through each resistor is same. ठीक है, this point is very much important. Current through each resistor is same, but जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस द रजिस्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ये सेकेंड पॉइंट है हमारा, दिस विल हेल्प अस to find the equivalent resistance of the circuit. ठीक है, now let us say I current is flowing through the circuit. So current through R1 would be I, current through R2 would be I, current through R3 would be I and current through Rn would be I. ठीक है, अगर इस सर्किट का इक्वेशन हम लोग लिखने जाएं एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज A, so how would we write the circuit equation? We would start from A, that is VA, and we will move, okay, let's say in this direction. Okay, this is our movement. So here this is positive, this is negative, so this would be minus E, and then move ahead. Here we will go, the direction of our movement and the direction of current is opposite, so the sign of the potential drop would be what? Positive, and this would be IRN. Then I plus I, this would be what? IR3, and sign would be positive because the movement and the current is opposite. Then plus IR2 plus IR1 plus नहीं, और हम लोग कहाँ पहुँच गए? We reached at A again. So this would be equal to VA. Now VA to VA is cancelled. E is equal to I R1 plus R2 plus Rn. ठीक है, तो अगर इस होल सर्किट को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करना चाहें, दिस होल सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू सम इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है, तो सो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज सेल and I amount of current would flow. This is equivalent resistance, R equivalent, this is E. So I would be equal to what? R equivalent by E. ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, so E would be equal to I R equivalent. So if this is 1 and this is 2, equating 1 and 2, I R1 plus R2 plus Rn is equal to what? I R equivalent. I to I is cancelled. If we equate Rn 2, so E would be equal to what? E, and here E is equal to I into R1 plus R2 plus Rn, and here E is equal to what? I R equivalent. So
value of R equivalent would be R1 plus R2 plus R3 plus Rn, और you may say R equivalent is equal to sigma Ri I from 1 to n। ठीक है, तो आप दो में से कोई भी याद रख सकते हो। तो इस तरह हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से रजिस्टर को कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जाती है। ठीक है, our next topic is parallel combination of resistors. So this is a circuit representing the parallel combination of resistors. In parallel combination, these are the branch, this is first branch, this is second, this is third. So the speciality of parallel combination is the potential difference across each branch would be same. The potential difference across each branch, that is BG CF DE would be same। for अगर यहाँ देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, BG CF DE would be same। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सो लेट अस सी, 2 से 4 मिनट लगेंगे, बट अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो दिस वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम आल्सो। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप प्रॉब्लम डायरेक्ट फॉर्मूला से ही बना लें। सो यू शुड नो हाउ टू डिराइव, दिस वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम समवेयर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एंड मूव थ्रू एनी क्लोज सर्किट, टेक एनी वन क्लोज लूप। सो वी आर टेकिंग अ लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लेट अस टेक ABGH, ठीक है। सो लेट अस से करेंट थ्रू दिस इज I1, करेंट थ्रू CF इज I2, करेंट थ्रू BG इज IN, द रजिस्टर इज R1, R2 एंड Rn। ठीक है, सो एंड हेयर करेंट इज व्हाट, I। So I would be equal to I current is going and it is getting divided into I1 to IN. Okay, so I can be written as I1 plus I2 plus IN, because the cell is sending a current of I, then the current are divided into n parts. This is I1, this is I2 and this is IN. Depending upon the value of resistance, the value of current would be decided। ठीक है, तो I1 can be written as I1 plus I2 plus IN। ठीक है, अब हम लोग एक सर्किट में मूव करने जा रहे हैं। द सर्किट इज ABGH, ABG and H। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज VA, सो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द डायरेक्शन of our movement and the direction of current is same। ठीक है, सो दिस इज VA, देन माइनस IN RN, since the direction of current and the direction of movement is same, so the sign would be negative and the potential drop is IN RN। then we came here and here this is negative, this is positive, so this would be plus E and we reached at A, so this is VA। so E can be written as IN RN or IN can be written as E by RN। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग लूप ACFH में चलें, ठीक है, दिस इज ACFH में, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल गो टू दिस रजिस्टर, द पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी I2 R2 एंड वी विल गो थ्रू दिस सेल एंड विल रीच A। तो सिमिलरली अगर इसमें देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, VA माइनस I2 R2 प्लस E इज इक्वल टू VA एंड सिमिलरली E कैन बी रिटन एज I2 R2 और I2 कैन बी रिटन एज E बाय R2। इसी तरह से अगर हम लोग लूप ADEH में चले तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू I1 R1 और I1 इक्वल टू E बाय R1। ठीक है, अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, सो दिस वुड बी इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज सेल E, दिस इज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट एंड I अमाउंट ऑफ करंट इज सेंट।
So here I can be written as E by R equivalent, and here I can be written as I1 plus I2 plus I3 plus In, and here I is equal to E by R equivalent. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. Let's equate the equation 1 and 2, because here I is equal to this much and here I is equal to that much. Okay, so I is equal to I equating 1 and 2, I equal to, sorry this ये 2 and 2 हो गया, 1 and 2 we got I equal to I. So I1 plus I2 plus In is equal to I. So this can be written as what? E by R1 plus E by R2 plus E by Rn is equal to E by R equivalent. So E can be cancelled and E 1 by R equivalent can be written as 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn. ठीक है. So this is the result of parallel combination of resistors, and this is the R equivalent, that is equivalent resistance. This is the equivalent resistance in case of series combination of resistor, and this is the R equivalent. ठीक है. अब जो एक डिफरेंस की बात करें हम लोग कि दोनों में जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस. तो सपोज दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. जो सबसे बड़ी बात है पैरेलल और सीरीज के बीच में कि आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पीसी इज smaller than the smallest resistor. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि if suppose that this is the circuit, suppose this is a circuit, okay, and this is cell. Let us say this is 5, this is 10 and this is 3 ohm. So smallest is what? Smallest is 3 ohm. So R equivalent would be less than even 3 ohm. Okay. But in series combination, the R equivalent in series combination SC is even greater than the greatest resistor. Okay. अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखें, एक सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. ठीक है. सपोज दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 3 ओम, दिस इज ई. ओके. तो हेयर आर इक्विवेलेंट वुड बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इज व्हाट? 10 ओम. द आर इक्विवेलेंट वुड बी ग्रेटर देन इवन द 10 ओम. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू इज रेजिस्टेंस इज सेम, while in parallel combination potential drop और potential difference through each resistance is same. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? वोल्टेज सेम. अगर सिंपल आपको याद रखना हो, यहाँ पे वोल्टेज सेम बट यहाँ पे करंट सेम. अगर आपको एक वर्ड में याद रखना हो, हेयर द वोल्टेज इज सेम एंड हेयर द करंट इज सेम. आप ये करके याद रख सकते हो. ठीक है. नाउ हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं. स्पेशल केस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पीसी. ठीक है. अगर हम लोग n नंबर ऑफ रजिस्टर्स को जोड़ रहे हैं, सपोज दिस इज द सर्किट ना, this is the circuit. Suppose say this is R1, this is R2, this is Rn and this is E. तो हमने जाना 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn. What if R1 is equal to R2 is equal to Rn, this is equal to R. Okay. So इस केस में क्या हो जाएगा? R equivalent would be equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R up to how much time? Up to n times na, n times. So 1 by R equivalent would be equal to
n by r and r equivalent would be equal to r by n. ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है. इफ n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी व्हाट, r by n. ठीक है, सो दिस इज अ सीरीज combination. Here R equivalent would be equal to what, R1 plus R2 plus Rn. अगर यहाँ भी R1 equal to R2 plus equal to Rn, this is equal to R, so R equivalent would be equal to what, R plus R up to n times, so R equivalent would be equal to what, NR. ठीक है, तो हमने देखा कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में R रेजिस्टेंस के रजिस्टर को n बार जोड़ा जाता है, दैट इज n नंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी NR, while n रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी R by n. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं. इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल केस हम लोग लेते हैं कि इफ़ this is two register, this is R1, this is R2 and this is connected to a cell. So what would सबसे पहला question, what would be the R equivalent? So R equivalent can be written as what, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by R equivalent can be written as R1 R2, this would be R2 plus R1, so R1 plus R2 by R1 R2. So R equivalent would be equal to what, R1 R2 by R1 plus R2. By using this method you can find the equivalent resistance of two resistors connected in parallel simply using this formula. आपको यहाँ पे बार बार ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं. आप सिंपली इस चीज़ को मेमोराइज कर लीजिए एंड जब भी दो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने की बात आए तो यू जस्ट डू इट. दिस इज फॉर मेमोराइजिंग. ठीक है, जस्ट मेमोराइज इट. ओके, यहाँ पर भी हम लोग कुछ और काम करेंगे. सपोज दिस इज E एंड दिस इज नाउ I current is flowing here in the circuit. This I current is divided into I1 and I2. I1 current is going through R1 resistor and I2 current is going through R2 resistor and I is the total current. We are to find the value of I1 and I2 if value of I is given. So how can we find the value of this I? For this we can convert the circuit into equivalent resistance circuit. So this is the equivalent resistance circuit, this is E, this is R equivalent and this is current I. So I can be given as what, E by R equivalent. E by R equivalent is what, R1 R2 by R1 plus R2. So this would be R1 plus R2 E by R1 R2. From here E can be given as R1 R2 I by R1 plus R2. So this is the value of E. Okay, now you know, जब हम लोग ऊपर सर्किट में चल रहे थे तो हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर R1 एंड अक्रॉस दिस रजिस्टर R2 वुड बी सेम बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. और वहाँ पे हमने ये भी देखा था, क्या देखा था हमने, कि E इक्वल टू I1 R1. अगर आपको नहीं याद आ रहा तो एक बार ज़रा सा आप ऊपर जाके देख लें कि हमने वहाँ पे डिराइव करा था E इक्वल टू I1 R1 एंड इसके लिए क्या करा था, E इक्वल टू I2 R2. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, E इक्वल टू I1 R1 एंड E इक्वल टू I2 R2. अब बताओ, I1 कैन बी गिवन एज E बाई R1 एंड I2 कैन बी गिवन एज व्हाट, E बाई R2. ठीक है, सो I1 वुड बी व्हाट, I1 वुड बी, E कैन बी रिटेन एज R1 R2 I by R1 plus R2. This is what, this is E, this is E and divided by R1. इसको डिवाइड करेंगे तो R1 would be cancelled. This would be equal to I R2 R1 plus R2. Similarly here I2 would be equal to R1 R2 I R1 plus R2. This is what, this is E
this is E here from here divided by R2. So R2 would be cancelled and this would be R1 plus R2. So we saw how the current is divided between the two resistors that are connected parallelly. ठीक है, यहाँ से हम लोग जो हमारा कंक्लूजन है वो लिखेंगे कि अगर हमें करंट निकालना है I1 दैट इज इन रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी कि इफ़ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दैट इज R1 एंड R2 अक्रॉस सेल. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो जो हमने सीखी इंपॉर्टेंट चीज़, आई विल हाईलाइट दिस ऑल्सो. ठीक है, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करके, एंड करेंट इन इस रजिस्टर कैन बी फाउंड आउट इफ टोटल करेंट इज गिवन. ठीक है, तो इस तरह से दोनों इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं समझता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं. Now let us do some question. This is the first question. This is very easy. This is 6 ohm resistor and connected in parallel. यहाँ पे निकालना है हमें R equivalent. So since there is only two resistor, so we can go by either approach. Like you can try to apply the actual formula, that is 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2, and you can find the R equivalent. Or you can apply the formula that we read earlier, that is R1 R2 divided by R1 plus R2. ठीक है, तो अगर ये अप्लाई करते हैं हम लोग तो R equivalent is equal to R1 R2 6 into 6 by 6 plus 6. So this would be equal to what? 3 ohm. तो यहाँ से हमने क्या एक रिजल्ट देखा, इसको जो हमने ऑब्जर्व किया, दिस इज 3 ohm. So 6 ohm and 6 ohm resistor are connected in parallel and the equivalent resistance is 3 ohm. तो इसको आप याद कर लीजिए कि whenever equal resistors are connected in parallel combination they become half. ठीक है, इसको क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी मदद मिलेगी. ठीक है, whenever two equal resistance or two equal resistor are connected in parallel, equal resistor connected in parallel, the equivalent resistance becomes half. ठीक है, इसको एकदम बिल्कुल याद रखना है. सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें R इक्विवेलेंट निकालना है. सिंस देयर आर ओनली टू रजिस्टर्स, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक है, सो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12, सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? 4 ओम. तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको आप अगर याद ही रख लेंगे कि 12 और 6 जब भी पैरेलली कनेक्ट होगा सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी 4. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 6, दिस इज 4 एंड इक्विवेलेंट इज 4. सो 4 इज स्मॉलर देन 6 एंड 12 बोथ. तो ये हमने ऊपर भी करा था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट. ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा. अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज सिंस देयर आर 3 रजिस्टर्स, सो यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 4. दिस वुड बी 4, 2 प्लस 1 प्लस 3, सो दिस वुड बी 6 बाय 12 एंड दिस वुड बी 1 बाय 2. सो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. बट अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बना सकते थे. कैसे? 6 and 12 gives what? 6 and 12 gives 4. So 6 12 would be 4 and 4 would be what? 2. तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 6 12 कितना हो गया? 4. ये हमने ऊपर पढ़ा हुआ है और ये 4 और ये 4 मिलके कितने हो जाएंगे? हमने पढ़ा है कि इक्वल अगर पैरेलल में होगा तो आधा हो जाएगा. सो दैट वुड बी 2. इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है. ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अगर इस क्वेश्चन में देखें हम, आपको मैं बताऊं एक चीज़ कि सपोज ये वायर है, ठीक है, एंड वन रजिस्टर इज कनेक्टेड हेयर. सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज सपोज F.
ठीक है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आपको आगे क्वेश्चन बनाने में, सर्किट सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सपोज कि यहाँ पे पोटेंशियल है V, ओके। तो यहाँ से आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इस बीच में कोई भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है नहीं, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वी कैन एज्यूम एज 0। तो इस बीच में सिंस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। IR इज द पोटेंशियल ड्रॉप। अगर कहीं भी R रेजिस्टेंस है तो सिंस रेजिस्टेंस इज 0, सो पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी 0। तो B के पास भी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल, V। इस बीच में भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0, सो द पोटेंशियल एट C वुड बी V। नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन C एंड D बिकॉज देयर इज नो रजिस्टर, सो एट D पोटेंशियल वुड बी व्हाट, V। बट हेयर potential would be dropped because there is resistor, and let us say the drop potential would be what, IR. So potential at E would be V1, not V. Okay. Next, from E to F there is no resistor, so potential at F would be V1. तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि I will merge the A, B, C, D and will write this as this is D and this is F, ठीक है। मैंने ये सारे को क्या किया, मैंने ये सारे को मर्ज करके एक कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया। तो वो दो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, दे आर सेड टू बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट, और उन पॉइंट्स को हम लोग मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। अब आप देखो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, देयर इज नो रेजिस्टेंस हेयर। सपोज दिस इज B, सॉरी B इज देयर, सपोज दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D एंड बिटवीन C एंड E। तो हम लोग C, D और E को चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। Similarly, suppose this is X, this is Y, this is Z. There is no resistance between XY and XZ. So we can combine the, or we can merge the point Y, X and Z. अगर हम लोग, ये हमारा सर्किट है सपोज, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को पकड़ के एक साथ कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को पकड़ के एक साथ कर सकते हैं, और ये हमारे सर्किट को जो है आप देखिए किस तरह से बना देगा। सपोज वो काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग सर्किट को मॉडिफाई कर रहे हैं, दिस इज यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मॉडिफाई करेंगे तो सर्किट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सर्किट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस वुड बी 8, 8, 4, 4, 4, 4। यहाँ जो ये है, इसका मतलब ये है कि दीज टू वायर आर नॉट टचिंग टुगेदर, ठीक है। ये वायर यहाँ से निकल रहा है नीचे से, एंड दिस वायर इज गोइंग अबव, ठीक है। दे आर नॉट टचिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इन पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएं तो दिस इज व्हाट, इसको हमने माना था C एंड इसको हमने माना था व्हाट, X, ठीक है। दिस इज सपोज A एंड दिस इज B। तो यहाँ पे A और C को भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं और X और B को भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम पे है, ओके। मेन है हमारा जो रेजिस्टेंस वाला चीज़ है वो हमारा डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, और वो सेम है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, आप देखो ये 4 और ये 4 दोनों सीरीज में है, सो दिस वुड बी कंबाइंड एंड दिस वुड बी एडेड एंड विल गिव व्हाट, 8। दिस 4 एंड दिस 4 वुड गिव व्हाट, 8। नाउ 8, 8, 8, 8। मैंने बताया था कि इफ n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी व्हाट, R by n. Here R is what, 8 and n is what, 4. 1, 2, 3 and 4. So this would be what, 8 by 4 and this would be 2 ohm. इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अगर किसी को लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, तो सेम फिलहाल तो एटलीस्ट नहीं है, बिकॉज हेयर द वायर्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, अच्छा ये भी क्या है, 8, 8, 4,
4 4 4। इन सब तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में अक्सर, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब। और अगर आपने कभी इन सब तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं लिया है तो आप डेफिनेटली या तो नहीं बना पाएंगे या अच्छा खासा इस पर टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे। और अगर आपने टाइम वेस्ट करा एग्ज़ाम में तो फिर तो क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम जाती है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि सपोज़ करिए कि इससे हमने करंट भेजा I, ठीक है, ये बैटरी यहाँ से करंट I भेज रही है, सो I करंट वुड कम हेयर। यहाँ पे आने के बाद सम करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड सम करंट विल गो इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई करंट, सपोज करिए दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ओके। समझने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं, आपको मैं स्लाइड पे ही समझा सकता हूँ यहाँ पे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। यहाँ पे जब I करंट पहुँची, सो सम करंट आउट ऑफ I1 वुड गो हेयर एंड सम करंट वुड गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेट अस से दिस इज I3 एंड दिस इज I4, ठीक है। अब when I2 reaches here, some amount of current will go there and some amount of current will go in this wire, okay. So let us say this is I5 and this is I6, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। नाउ अगर हम लोग क्या करें, एक बार फिर से हम लोग इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर एक बार हम लोग इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करें तो देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। सो देखिए, सेम सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर देंगे सेल का जो डायरेक्शन है। वी विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ सेल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेल को उल्टा लगा दिया। तो अगर सेल को उल्टा लगाएंगे, अब देखते हैं क्या होगा। सिंस अगर आप बताइए इस सेल को उल्टा करने से यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज होगा? ये जो हमारा ये पूरा है इस सेटअप, ये तो सेम ही है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वॉन्ट चेंज। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो सेम I current will be sent by this cell because the voltage is same. Suppose this is V, then this is also V. So I current will go now. Here I current will go now. अब यहाँ से क्या होगा, बाइफरकेट होगा। तो इधर कितनी करंट चली जाएगी, I1 एंड इधर कितनी I2, बिकॉज कन्फिग्रेशन सेम है। आप देखो कि जब यहाँ से करंट आई थी इसमें, इस सर्किट में देखो आप कि करंट आई थी I, यहाँ पहुँची I1, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ आगे 4 4। तो I1 I2 में बाइफरकेट हुई। तो इधर से भी देखोगे अगर आप तो 8 है, 4 4 8 एंड आगे 4 4, तो सेम बाइफरकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ जाके भी क्या होगी, यहाँ से इधर हम लोग जो रिवर्स किया था हम लोग रेड से लिख रहे हैं। दिस वुड बी I3, दिस वुड बी व्हाट I4, दिस वुड बी I5, दिस वुड बी I6, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग सेल रिवर्स कर रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ करेंट इज फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टर दैट वाज फ्लोइंग थ्रू दीज रजिस्टर। मतलब बेसिकली ये है कि देयर इज सिमेट्रिसिटी इन द सर्किट। सर्किट हमारा सिमेट्रिकल है। मतलब इसमें अगर पहले I4 करेंट आ रहा था, इसमें अगर I4 करेंट आ रहा था तो इधर से भी I4 करेंट आ रही है। मतलब बेसिकली ये I4 करेंट फ्लो कर जाएगी इस सर्किट से होके। अगर यहाँ हम लोग फिर से जाएं तो दिस I4 करेंट विल कम, विल क्रॉस द सर्किट एंड विल डायरेक्टली गो टू दिस रजिस्टर। दिस I4 current will come, will cross this register and will directly go to this register. Similarly, this I5 current will come and this will directly go to this register. तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो जंक्शन है हमारा, लेटेस्ट से दिस इज O, तो O पे जो करंट है उसकी मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। जो I4 करंट आ रही है दिस इज गोइंग टू दिस रजिस्टर I4 एंड दिस I5 इज गोइंग टू दिस रजिस्टर I5। मतलब
ये जो पॉइंट है इसका जो या जैसे होना ये चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था कि I4 इधर से आ रही है, I5 इधर से आ रहा है, I4 I5 मिल जाते एंड फिर उनके बीच कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता एंड करंट विल इंटर I4 दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर, बट ऐसा हुआ नहीं। जो I4 थी, I4 सीधा इसमें चली गई और I5 सीधे इसमें चली गई, मतलब इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया। सिमेट्रिसिटी की वजह से ये जो पॉइंट है इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग करेंगे कि एक बार फिर से इस सर्किट को बनाएंगे, ठीक है। ये सर्किट को हमने एक बार फिर से बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आप देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग कुछ कर देंगे मॉडिफाई। कैसे? ऐसे, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट की कोई मतलब नहीं रही। जितनी करंट इसमें आ रही है, द सेम करंट इज गोइंग टू दिस आर्म एंड द करंट इन दिस रजिस्टर इज गोइंग टू दिस रजिस्टर। तो यहाँ पे ज्वाइंट होने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो सो हमने ज्वाइंट को हटा दिया। अगर आप देखोगे अब तो दिस ब्रांच, दिस ब्रांच, दिस वन एंड दिस वन आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप चाहो तो आप आराम से निकाल सकते हो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे? दिस 4 एंड दिस 4 इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो दिस वुड बी 8। दिस 4 and this 4 is series combination and this would be 8. Now 8, 8, 8, 8 are in parallel combination. तो हमने पढ़ा हुआ है कि if n number of equal resistor are combined in parallel combination, so the R equivalent would be equal to what? R by n. So R is 8 and n is 4, so this would be equal to 2. ठीक है। And last thing we are going to do is Wheatstone bridge. इसका भी प्रूफ है, बट इफ़ आई गो फॉर प्रूफ दिस वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, और इसका प्रूफ करने से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्टली क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which gives deflection whenever current flows through it, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की क्या खास बात होती है कि गैल्वेनोमीटर की निडल बीच में होती है, अगर पॉजिटिव करंट जा रहा है तो दिस विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड करंट इज रिवर्स देन दिस विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर गिव्स बोथ वे डिफ्लेक्शन। अगर सपोज इधर से करंट आ रही है तो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, अगर इधर से करंट जा रही होगी तो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बट करंट अगर है, फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर इवन गिव्स सम डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ गैल्वेनोमीटर है। तो देखा गया कि अंडर दिस कंडीशन, इफ दिस इज 8 ओम, दिस इज 24 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 36 ओम, तो अंडर सच कंडीशन गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन एंड दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है, तो एक बार हम लोग फिर से बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। This is galvanometer and this is connected to cell, ठीक है। Suppose this is P ohm, this is Q ohm, this is R ohm and this is S ohm। तो कंडीशन क्या है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, that P by Q should be equal to R by S। अगर आप चाहो इसको तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे? R को यहाँ ले आओ, ठीक है, और Q को वहाँ लेके चले जाओ क्रॉस, सो P by R would be equal to Q by S। So if this condition is satisfied, the current through galvanometer would be 0 and this is a case of balanced Wheatstone bridge, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्या हमारा ये बैलेंस्ड हो रहा है, बैलेंस्ड है, यस और नो। सो देखते हैं हम लोग। तो P इज़ व्हाट 8 एंड Q इज़ व्हाट 24। सो 8 by 24 इज इक्वल टू 12 by 36, बराबर है या नहीं देख लेते हैं हम लोग। 36, सो 3 3, 1 by 3 इक्वल टू 1 by 3, यस दिस इज बैलेंस्ड। सो इफ दिस इज बैलेंस्ड सो नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मैं देख रहा था कि बहुत लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसको बोल रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज।
दिस इज़ अ सर्किट और यहाँ पे एक रजिस्टर थी लगी हुई। सपोज दिस इज़ 8, दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 12, दिस इज़ 36 एंड यहाँ पे सपोज कुछ लगा हुआ था लाइक कुछ भी ले लो आप, 12 ले लो, ठीक है। तो बोल रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज है, करंट वॉन्ट फ्लो फ्रॉम 12 ओम रजिस्टर बिकॉज दिस इज 8, दिस इज 24, दिस इज 12, दिस इज 36, दिस इज बैलेंस्ड। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आप बोलते हो कि दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप गलत हो। दिस इज नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज सिंपल सर्किट क्वेश्चन। ये दोनों हमारा किस में है? सीरीज में है, सो दिस वुड बी 20। ये दोनों सीरीज में है, दिस सो दिस वुड बी 60 एंड दिस इज 12। तो इसको सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/60। सो दिस वुड बी 60, दिस वुड बी 3 प्लस 5 प्लस 1, 5 3 8 1 9, 9/60 इज इक्वल टू 1/R इक्वेलेंट। यहाँ से R इक्वेलेंट को आप लिख सकते हो 60/9, सो दिस वुड बी 20/3 ओम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि जिधर से सर्किट की करंट आ रही है, सेल जिधर से करंट भेज रहा है उसके पैरेलल में होता है जब रजिस्टर, तब वहाँ पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगाएंगे। ये नहीं कि इस तरह से रजिस्टर जोड़ा हुआ है एंड वी आर अप्लाइंग व्हीटस्टोन ब्रिज, सो दिस वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे लगता है समझ में आ गया है। तो इस चैप्टर में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किए, उसमें हमने उस पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना सीखा। उसके बाद हमने स्पेशल केस पढ़ा जिसमें दो ही रजिस्टर को हमने पैरेलली कंबाइन किया और वहाँ पर डायरेक्टली हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा, करंट दोनों में निकालना सीखा। उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चन किए और वहाँ पे एक जो सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिमेट्रिसिटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। बहुत लोगों की शिकायत है कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं पहले से लिख के लाऊं और यहाँ पे आके बस बोल के चला जाऊँ। आप बताओ, मैं पहले से इसको बना के लाऊंगा और यहाँ के आके कुछ कुछ बोल के चला जाऊँगा, फिर आपको क्या फ़ायदा होगा? लिखा हुआ चीज़ तो बुक में भी है, ठीक है। तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको स्लो लग रहा है तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आप 2x पे कर लो अगर आपको स्लो लग रहा है तो। लेकिन आपके सामने में कंटेंट डेवलप होगा तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर और आपके दिमाग में वो बातें रहेंगी। बाकी लिखा हुआ तो बुक में भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अपना नोट्स दे दो, नोट्स पढ़ लूँगा। आपको मैं बताऊँ, नोट्स एक तो पहली बात तो मेरे पास है नहीं रेडीमेड नोट्स। जो मेरे पहले के पढ़े हुए चीज़ें हैं मैं भी नहीं समझ पाता कि मैंने क्या लिखा हुआ है, उस वक्त मैंने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, तो आपको मैं क्या दूँ। दूसरी चीज़ कि अगर नोट्स से कंपटीशन निकलता तो जितनी भी अच्छी कोचिंग्स हैं, चाहे वो आईएएस के लिए बाजीराम हो, चाहे वो आईईएस के लिए आईएएस मास्टर हो, चाहे मेडीजी हो, चाहे फिर जेईई मेन के लिए और नीट के लिए रेजोनेंस और एलएन हो, सभी के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल हैं। इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ। लेकिन वो पढ़ के कंपटीशन नहीं निकलता है। कंपटीशन के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि आप ये करो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नोट्स दे दूंगा और कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। मुझे तो अपना नोट्स खुद समझ में नहीं आता, आप कैसे समझोगे? एक तो है भी नहीं, जो थोड़े बहुत है वो नोट्स नहीं, वो रफ हैं, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो दे के मैं क्या करूँगा आपको, ठीक है। आपको मैं बस आइडिया दे सकता हूँ कि आप ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है। मैंने बहुत सारे बुक के नाम बताए। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आप नहीं कुछ तो एनसीईआरटी पढ़ो। आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा है तो आप एचसी वर्मा पढ़ सकते हो, आप डीसी पांडे पढ़ सकते हो, आप किसी कोचिंग का बुकलेट उठा लो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ से कोशिश कर सकते हो। अगर आपकी 11th 12th की नोट्स रखी हुई है, आपने कहीं पे रखा है तो आप वो ले लो, वो पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स किसी दूसरे का लेके आई डोंट थिंक कि कुछ होने वाला है। आप बोलोगे कि फिर ये पीडीएफ क्यों देते हो, ये भी तो आपका नोट्स है, आपने लिखे हैं इसमें, बट ये नोट्स आपके सामने में बना है। अगर आप भी होते तो आप इसी तरह इसको नोट डाउन करते। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह से इसको देखते जा रहे हैं कि हाउ इट इज़ डेवलप। तो आपको अगर कभी पीडीएफ पढ़ते वक्त कुछ समझ में ना भी आए तो अगर हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप
समझ सकते हो कि आपने उस वक्त देखा था वो चीज़ें लिखती हुई, तो आपका कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा क्लियर है, तो आप समझ सकते हो वहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, और ये सरफेस जो है पेपर तो एक्चुअल में है नहीं ना, तो थोड़ा सा तो स्लाइड करेगा पेन, तो आई ट्राई कि मैं नीट ही लिखूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाता है। ठीक है, तो उतना तो आप लोग सारे लोग ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, 9th-10th के तो स्टूडेंट हैं नहीं, तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।